صرف اور صرف اللہ کی کتاب یہ کہ 100% پرفیکٹ ہے قرآن. باقی حدیثیں وغیرہ اور باقی ساری چیزیں 100% نہیں ہے وہ. حدیثیں بھی صحیح نہیں ہے, صحیح حدیثیں بھی نہیں صحیح ہیں, بخاری وغیرہ, ترمذی, ابن 100% ماجہ. جی 100% نہیں ہے. 100% بخاری بھی 100% صحیح نہیں ہے. نہیں ہے. چلیے, ہاں منکر حدیث ہو گئے بھائی آپ. ہاں بھی ہونے دو بھائی. چلیے ٹھیک ہے, نہیں آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ کے مسلمان ہو. آشیش بھائی, اگر آپ کو یہ اللہ کے کام پسند نہیں ہے تو آنکھوں سے دیکھنا چھوڑ دیجیے. میں مانتا ہوں کہ مجھے اللہ کا کام پسند نہیں ہے. بولنا چھوڑ دیجیے. میں بتاؤں, مجھے اللہ کا کام پسند نہیں ہے, لیکن میں یہ بھی یقین کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ اس نے یہ سب بنایا ہے, میں مانتا ہوں کہ اس نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے. تو جب اس نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں. نمستے سبھی کو متروں, ویچارک منتھن ایکس ایمان والا یوٹیوب چینل پر میں آپ کا ساتھی آشیش چورسیا آپ سبھی کا ہاردک سواگت ایوم ابھینندن کرتا ہوں. متروں, محسین علی جی کے ساتھ ہوئی ہماری پچھلی بات چیت تو آپ لوگوں نے سنی ہی ہوگی. اگر نہ سنی ہو تو اوپر دکھ رہے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ہماری پچھلی بات چیت کو اوشیہ سنیے. تو جیسا کہ پچھلی بات چیت کے آدھار پہ آپ لوگوں نے یہ جانا کہ محسین علی جی سے میری سورہ فاتحہ پہ چرچا شروع ہوئی تھی, کیونکہ محسین علی جی بار بار یہ کہتے تھے کہ بھیا سورہ فاتحہ کو اگر کوئی سمجھ جائے تو دنیا سے جتنی بھی آتنک ہیں اور جتنا بھی چیزیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور دنیا بہت اچھی ہو جائے گی. تو میں نے سوچا کہ چلو سورہ فاتحہ پہ ہی بات کرتے ہیں. تو محسین علی جی سے میری سورہ فاتحہ پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے, اور اسی کڑی کے انترگت ہماری اگلی بات چیت آج میں آپ لوگوں کے سمکش رکھ رہا ہوں. آپ سب بھی سنیے ایوم نرنے لیجیے. ہلو آشیش بھائی نمستے. ہاں نمستے بھائی, السلام علیکم. کیسے ہیں آشیش بھائی؟ بس سب بڑھیا ہے. اور بتائیے بھائی. اور آپ بتائیں بھائی, کیسے ہیں؟ کھانا کھا لیے؟ ہاں ہو گیا. کھا لی ہیں آپ؟ ہاں بھی کھا لیے. جی, تو کیا کہنا ہے آپ کا کل والے وشے پر؟ کل بھائی آپ نے پوچھا کہ مسلمان 4 شادی کرتے ہیں. نہیں, 4 شادی کی بات نہیں کہی تھی میں نے. ہاں تھا کہ شروع مطلب کہ کن کن چیزوں کا شروعات اللہ کے نام سے ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ کیا کس چیز کا شروعات ہوگا, اور دوسری بات کہ بھیا وہ رحمان اور رحیم کیسے ہے. جی ہاں رحمان اور رحیم آیا, اور 4 شادیوں کا ذکر کیا ہے, کیونکہ اس کے نام سے ہاں 4 شادیوں کا انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا. جی ہاں. اور جہاں تک دیکھیے رحمان اور رحیم کی بات ہے ہاں تو اس کا ہی نام لے کے, اور جہاں تک رہی بات شروع کرنے کی, بسم اللہ کرنے کی بات ہے, اللہ کے نام سے شروع کرنے کی, جی تو اللہ کے نام سے ہی تو آتنکوادی لوگ بم پھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نام سے ہی, یہ ریالٹی ہے. آپ وہ غلط کہیں صحیح کہیں جو بھی کہیں, لیکن ہو تو رہا ہے ریالٹی میں جی کہ ان کے ہی نام سے ہو رہا ہے. تو برائی کی شروعات بھی تو اللہ کے نام سے ہو رہی ہے. جی بکرے جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے, جیووں کو مارا جا رہا ہے. جیو ہاں میں انسان بھی آتے ہیں, جانور بھی آتے ہیں. تو جی جیووں کو مارا جا رہا ہے اللہ کا نام لے کے, ریالٹی ہے یہ. تو پھر ہاں کیا کہا جائے. جی جی تو آپ کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ کا نام لے کر برا کام کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, یہ ہے نا. اور بہت سارے مسلمان کے تمام مسلمان جو ہیں اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرتے ہیں. پرتیک مسلمان, ہاں ہر مسلمان, جو بھی مسلمان جانوروں کا گوشت کھاتا ہے اس کو مار کے. جانوروں کا گوشت کھاتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں میرا یہاں پہ مسئلہ مطلب میرا یہاں پہ وشے ہے کہ بھیا مار رہا ہے نا, تو اس جیو کے لیے جو مارا جا رہا ہے اس کے لیے تو اللہ دیاوان نہیں ہوا. ہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا وہ نہایت رحم کرنے والا ہے. کہاں رحمت, اس کے لیے تو وہ رحم کرنے والا نہیں ہی ہوا نا. جی 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 تو اسی بات پہ چرچا کریں گے نا. ہاں, اگر آپ چاہیں تو
जवाब दें, अगर आपको जैसा भी समझ में आता है आप बताएं, अगर आप कहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसी पे बात करेंगे। एक रहा अल्लाह रहमान है, रहीम और कैसे जानवरों को जो ज़िबा करने की इजाजत देता है। दूसरा रहा ये जितने आतंकवाद है जो कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेके दूसरों को मार रहे हैं। और एक सवाल था आपका कि 4 शादी करने का अल्लाह ने मुसलमानों को इजाजत दी है। वो 4 शादियों वाला मैंने किस पर्सपेक्टिव में कहा था, इस संबंध में शायद नहीं कहा था, या फिर वो अलग संबंध में मैंने बोला था 4 शादियों वाला। हाँ, कल बात किए थे ना, ये 3 आपके सवाल थे। संबंध में मैं तो कोई कल बात नहीं की, सिर्फ आपकी सुन रहा था। आपके सवाल का मैं सुन रहा था, कोई जवाब नहीं दिया था कल जी। ये 3 आपके प्रश्न थे जी। आप हाँ बताएं, मतलब मेरा यही है, सूरा फातिहा बिस्मिल्लाह के ही ऊपर हूँ मैं। जी हाँ जी हाँ, बिस्मिल्लाह तो क्लियर हो गया, अब रहमान रहीम पे जाना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाँ वही तो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आगे यही कैसा रहमान है कैसा रहीम है ये बात रही थी ना। हाँ, और कैसे शुरू हो सकता है उसके नाम से। जी हाँ जी हाँ। देखिए भाई, ये भला या बुरा, अच्छा काम बुरा काम, पाप और पुण्य जो है ना, ठीक है, ये जो हमारा क्रिएटर है ना हम सबका, ये बताएगा ना कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है। हम जिस काम को अच्छा समझते हैं वो उसकी निगाह में बुरा हो सकता है, जो उसकी निगाह में अच्छा है हमारी निगाह में वो बुरा दिखता है। अच्छा, तो आपके सामने कुछ बात करूंगा। आप अपना घर बनाते हैं, बनाया है समय, ठीक है, अपना घर बनाए हैं ना आप, बनाए हैं, तो आप आपके ढंग से बनाएंगे घर, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा होगी इस तरीके से आप अपना घर बनाएंगे, ठीक है। आप जैसे चाहेंगे कि जहां पे दरवाजा रखना है, खिड़की रखना है, कौन सा कलर बनाना है, कौन सा कमरा किधर आना है, ये आपकी पसंद से आप बनाएंगे। बराबर है। अगर कोई शख्स आपसे कहे कि भाई मुझे आपका घर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके घर का कलर आपने सफेद किया है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपने खिड़की लगाई है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आपके घर का कलर ब्लैक कलर हो जाए, ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, वो कहेगा कि ये सफेद कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा काला कलर अच्छा लग रहा है। फिर जो खिड़की जो आप लगाए हैं ना ऊपर, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बल्कि दरवाजा जहाँ लगा वहां पे आप खिड़की लगाओ, जहाँ खिड़की लगी वहां पे दरवाजा लगाओ, कहेगा वो उसकी पसंद है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे उसको, भाई आपको अच्छा लगे या ना लगे ये आपका तो घर नहीं है। मैं उसको ये कहूंगा ना कि भैया अच्छा लगे, ये तुम अपनी बात मत बताओ, वो बताओ कि वो अच्छा नहीं है या बुरा है। देखो, अच्छा ना होना और बुरा ना होना, अच्छा ना होना, पसंद ना होना, दोनों अलग चीज है। आप मुझे अच्छे व्यक्ति नहीं लगते, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो। हो सकता है कि पूरी दुनिया के लिए आप अच्छे हो, लेकिन मेरी पसंद है कि भैया आप मुझे अच्छे नहीं लगते। तो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा मैंने क्या कहा था कल भी, अगर आप देखें तो मैंने कहा क्या था कि मुसलमानों को छोड़ के जो नॉन मुस्लिम है, जो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, वो इन सब चीजों को गलत मानते हैं और वो मानवता के लिहाज से कहते हैं कि भैया ये गड़बड़ है। और अगर आप कहोगे कि नहीं भैया वो क्रिएटर ने जैसा बनाया है उसके हिसाब से ऐसा है, तब आपको मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में तो सबसे ज्यादा फिर ईसा को या फिर ईसाई लोग हैं, और वो जो मानते हैं उनको आप नहीं मानते। तो बात ये है कि ज्यादा लोगों का मान लेना, या फिर वो भी तो यही कहते हैं कि भैया, वो भी यही उदाहरण दे कि भैया हमारे समझ लो कि किसी ने घर बनाया और कोई आके बोले कि नहीं भैया ये घर बनाने वाला तो क्या नाम से उसका बेटा नहीं था, उसका तो कोई बेटा ही नहीं हो सकता, ऐसा वैसा इस तरीके से कोई बताए तो कैसा होगा। इस तरीके से भी बात हो सकती है। लेकिन बात यह है कि मोरालिटी
जो नैतिक नियम है, कानून है, जो हाँ हाँ मनुष्य का मानवता है, उस सहज मानवता के स्वभाव के आधार पे कौन सी चीज सही लगती है, कौन सी चीज गलत लगती है, कौन हाँ सी मानवीय है, कौन सी अमानवीय है, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो अल्लाह तो दयावान बिल्कुल नहीं, जो भी हो, लेकिन दयावान तो बिल्कुल नहीं है, हाँ। रहमान और रहीम तो बिल्कुल नहीं। जी वही तो समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ना, बीच में बात कट जाएगी तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। जी, आप बोले नहीं, आप गैप ले लिए थे तो मुझे लगा कि मैं बोल सकता हूँ। नहीं नहीं, तो उस आदमी ने आपके सामने राय रखी उसकी कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपके घर का पेंट व्हाइट है, काला कर दो। तो आप कहेंगे भाई आपको पसंद आए तो मैं क्या करूँ, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी जैसी चाहिए सिर्फ बनाया हूँ मैं। बिल्कुल आप अगर चाहते हैं तो अपना घर अपने तरीके से बना लो, बिल्कुल यही कहेंगे ना आप। बिल्कुल ये नहीं कहेंगे तुझे जबरदस्ती से मुझे मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, भाई तुम्हारा रास्ता तुम देख लिया करेंगे। वो व्यक्ति तभी बोलने का हकदार है जब हाँ सामने वाला व्यक्ति कहे कि नहीं भैया, मेरा घर ही सबसे अच्छा है और मेरे हाँ घर में कोई कमी ही नहीं है और मैं ही हूँ ये घर बनाने वाला, और हाँ इसमें कोई कमी दिखा दो तो मैं जानू, हाँ हाँ इसमें कोई कमी नहीं दिखाई जा सकती। इस तरीके से बातें बोलेगा तो फिर लोगों को बोलना पड़ेगा और फिर हाँ। वो व्यक्ति बोलेगा और कमी दिखाएगा, सबूत दिखाएगा। जी हाँ जी हाँ। भैया प्लास्टर उखड़े हुए हैं, रंग तुम्हारा फीका पड़ता चला जा रहा है, तमाम चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं और तुम हमको दावत दे रहे हो कि आओ हमारे घर में। जी हाँ जी हाँ। जी जी आगे बढ़े। जी ऐसा नहीं होता कि आप उस आदमी की बात मान लिए, उसके बाद सुनकर आपके घर का कलर काला कर दिए या खिड़की निकाल के वहां पे दरवाजा लगा दिए, दरवाजा निकाल के खिड़की लगा, ऐसा नहीं करेंगे ना आप। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसी अगर तरह से करने अल्लाह लायक ताला। रहेगा तो कर सकते हैं, अगर जी हाँ उसका विचार अच्छा लगा तो कर जी भी सकते हैं और जी हाँ तमाम लोग करते भी हैं। जी हाँ जी हाँ, अच्छी बात है। हाँ इसी तरह अल्लाह ने कहा मैंने इंसान को बनाया, हम्म, मैंने इंसान को बनाया। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा मैंने इंसान को बनाया है। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि अल्लाह ने ही बनाया है। हाँ जी, कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आप मैं कुरान तो की वही तरफ कह रहा हूँ कुरान की बात में कर रहा हूँ। भाई। देखिए, आप अगर कोई कहे कि भैया मैंने रसगुल्ला बनाया है, हाँ तो जब तक वो रसगुल्ला के इंग्रेडिएंट्स नहीं बताएगा हाँ हाँ। तब तक कैसे मान लिया जाए कि उसने ही रसगुल्ला बनाया है। अच्छा, इंसान को हमने बनाया, अल्लाह ने बनाया, कहीं दूसरी जगह किसी ने कहा है कि हमने इंसान को बनाया? आप ये बताइए कि इंसान को बनाने में कौन कौन से तत्व को लिया था अल्लाह सुब्हानो ताला ने। हाँ वो नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, कुरान के साथ आपको प्रूफ दूंगा। अच्छा दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी जितना देखा है ना, हाँ हाँ मट्टी का जिक्र आता है कि मट्टी से बनाया, हाँ 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 जबकि पूरी तरह से वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं हुआ उस मनुष्य के शरीर को बनाने का। हाँ हाँ हाँ। तो इससे भी पता चलता है कि भैया वो बनाने वाला नहीं है, वो बस बकैती कर रहा है, हाँक दिया उसने कि भैया हाँ बनाया हूँ मैंने। लिखने के लिए तो कोई किताब में बहुत कुछ लिख दे कि भैया मैं सुपरमैन हूँ, चड्डी पहन के उड़ जाता हूँ, लेकिन वो सही थोड़ी ना होगा भाई जी। हाँ तो अच्छा, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा ना। चलेगा। तो आपने पूछा कि बहुत सारों ने बताया कि इंसान को बनाया, आप बताए कि कौन से ग्रंथ में ग्रंथ नहीं, हमने इंसान को बनाया, किसने कहा? नहीं, कौन कौन से तत्व थे, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिए अल्लाह ने बनाने के लिए। मैं बताऊंगा, मैं आपको ठीक है, बताऊंगा ना। आपने पूछा कि और ने भी कहा है कि हमने इंसान को बनाया, किसने कहा है ऐसा कि हमने इंसान को पैदा किया? आपकी निगाह में कोई है तो बताइए, मेरी निगाह में तो नहीं है। हो सकता है आपकी निगाह में होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में मनुष्य के शरीर का वर्णन आया है। हाँ। और मनुष्य का शरीर किन किन तत्वों से बना है इसका हाँ। भी वर्णन आया है। हाँ। जब नेक्स्ट टाइम आप अगर अपना वाला उदाहरण पेश करेंगे तो उस टाइम पे मैं भी अपना वाला उदाहरण पेश कर दूंगा। जी कीजिए। ठीक है, और मैं ऐसा उदाहरण पेश करूंगा कि आप किसी भी सामान्य हिंदू से पूछेंगे तो वो कहेगा कि हाँ भैया बात सही है। हाँ, हाँ, आप शास्त्र पढ़ना चाहें तो आप सर्च करके देख भी लेंगे। तो मैं आपसे ये पूछा कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो कोई और भी है जो ऐसा दावा करता है कि मैंने बनाया है? कहीं है? दावा करने से कोई चीज सही हो जाती है जब तक कि उसे साबित ना किया जाए कि हाँ भैया मैंने ही बनाया है, ये देखो ये इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए थे और मैंने ऐसे ऐसे बनाया था।
جی ہاں جی ہاں. اب किस्से कहानियों के हिसाब से तो ऐसा भी बताया जाता है कि आदम की मूर्ति बना के कई सालों तक पका रहे थे अल्लाह ताला, फिर उसके बाद शैतान जो था वो बहिश्त में था तो उसने आदम के पेट पे थूक दिया, तो उतना हिस्सा हटा के क्या नाम से, नहीं ये शैतान ने थूक दिया था तो उतना हिस्सा हटा के उससे कुत्ता बना दिया. इस तरीके की भी किस्से कहानियां हैं जो कि मानने लायक बिल्कुल नहीं है. जी जी जी. किस्से कहानियां भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं कम इल्मी की वजह से. आप बताइए ना कि ये पॉसिबल, ये आपको लगता है कि ये सही है कि अल्लाह ताला ने शायद ये जिब्राइल ने जो ये क्या नाम है इसका, अजाजिल ने जो थूक दिया था शैतान के पेट में, तो उसी का मिट्टी निकाल के क्या नाम से उससे मट्टी बना, उससे कुत्ता बना दिया उतना हिस्से का, तो वही जो उतना गैपिंग है वो नाभि बन गया. तो मैं कहता हूँ जो पीछे गैप है उसका भी तो कुछ बनाया होगा. नहीं नहीं, किसी हदीस में ऐसा नहीं है भाई. कसीसुल अंबिया में है प्यारे भाई, मैं आपको बता सकता हूँ. कसीसुल अंबिया में है ना? हाँ, कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है वो. तो कसीसुल अंबिया जो लिखने वाले हैं वो सब बेवकूफ हैं, आप कह सकते हैं. हाँ हाँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब ये कि 100% परफेक्ट है कुरान. बाकी हदीसें वगैरह और बाकी सारी चीजें 100% नहीं है वो. हदीसें भी सही नहीं है, सही हदीसें भी नहीं सही है, बुखारी वगैरह, तिरमिजी, इब्न माजा. जी 100% नहीं है. 100% बुखारी भी 100% सही नहीं है. नहीं है. चलिए, मुनकिर हदीस हो गए भाई आप. हाँ भी होने दो भाई. चलिए ठीक है. नहीं, आप थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के मुसलमान हो. हाँ 100% नहीं है वो. सही, सिर्फ कुरान मजीद ये चीज 100%. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है जी. इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया. आप नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, चर्चा है. हाँ, मैं आपको मानने के लिए मैं मान सकता हूँ अगर लॉजिकल बात बताई जाए तब ना, केवल कहने के लिए. अब मैं कह दूं कि भैया आपने जो फोन, जिस फोन पे बात कर रहे हो मैंने बनाया है जी, तो आप केवल, मैं कह दूं और उसका एक कहानी भी बना दूंगा कि मैंने ऐसे ऐसे बनाया था, फिर ऐसे हुआ था, फिर उस पे किसी का कॉल आने लगा और इस तरीके से फोन पे बातचीत होने लगी. इस तरीके से मैं कहानी बना सकता हूं जैसे कि अल्लाह ने बनाया है या फिर अल्लाह का जो भी जिसने भी बनाया है, तो उस तरीके से मैं बता सकता हूं. लेकिन वो जब तक मैं उसकी टेक्निकलिटी नहीं बताऊंगा तब तक कैसे माना जाएगा. जी, अल्लाह ने टेक्निकलिटी कहीं पे भी नहीं बताई है. हाँ हाँ. तो आगे बढ़े जी. अल्लाह ताला जैसा चाहा वैसा इंसान को बनाया. ठीक है. अल्लाह ताला ने चाहा कि इंसान को 2 आंखें दे, 2 आंखें दे. ठीक है. और आंखों के नीचे, पेशानी के नीचे आंखों को बनाया. ऐसा जैसा उसने चाहा वैसा बनाया. और नाक के नीचे जो है होठों को बनाया. और होठों के नीचे अंदर जो है दांत बनाया, दांत के अंदर जुबान बनाया. जैसा वो चाहा वैसा बनाया. वो उसके साथ कोई शरीक नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था. वो जैसा चाहा वैसा बनाया. और अल्लाह ने इंसान को 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया. अगरचे आप नहीं मानते अल्लाह को कि भाई ये चीजों को मैं नहीं मानता, तो कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है. आप पसंद करें ना पसंद करें, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि इस्लाम कुरान का ला इकराह फिद्दीन. या आप कह रहे हो इस्लाम का पर्सपेक्टिव अलग है. बात है आप एक शांति प्रिय या फिर प्यार शांति प्रिय बनने का वो करते हैं, तो आपके लिहाज से सही है. हाँ. लेकिन अगर आप इस्लाम के लिहाज से देखेंगे तो उसका थोड़ा सा अलग है, जिस पे हम कभी और बात कर लेंगे. तो आप फिलहाल ये बात पे फोकस कीजिए भाई. जी हाँ. कि क्योंकि विषय से थोड़ा सा भटक रहे हैं. नहीं इस्लाम कितना शांति प्रिय है वो तो हमारी पिछली बातचीत में हो गया था. नहीं पे आ रहा हूँ. और इसी तरह से अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों को इंसान के अंदर बनाया है. और हर चीज को अल्लाह ताला ने एक काम दिया है, एक ड्यूटी दिया है. जी. आप ये जो अल्लाह की बातें हैं ना, पसंद है तो आप कबूल करें, ना पसंद है तो कोई बात नहीं.
हाँ नापसंद है तो अल्लाह फिर कढ़ाई में खौलाएगा हमको जन्नत के में। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इनकार करने वालों को अल्लाह खौलाने की बात बोली है, अगर आप कहेंगे तो मैं कुरान से बता सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, जो समझ जाने के बाद इनकार करेंगे। भाई समझ जाएगा तो कोई इनकार क्यों करेगा? समझ ही नहीं सकता। वो कह रहा है ना कि भैया समझ आ गया है कि भैया ये नहीं है। नहीं नहीं, अगर समझा नहीं तो अल्लाह गफूर और रहीम है, रहमान है। मतलब समझना आपके क्राइटेरिया में जाके समझेगा तो ही, वरना अगर वो एक्चुअल में समझेगा तो आपके हिसाब से वो नहीं समझा है। हाँ हाँ, मतलब एक बात कह रहा हूँ कि आप कहते हो कि भैया 2 और 2 22 होता है, मैं कहता हूँ कि नहीं भैया 2 और 2 4 होता है, तो आप कहोगे कि नहीं आप तो समझे ही नहीं और इसीलिए आप गुमराही में चले गए। ऐसा कोई ना होता है। लॉजिकल बात हमको जो समझ में आएगी, दुनियावी चीजें। गलत तो गलत ही है ना जी, गलत तो गलत ही है। गलत तो गलत ही है, लेकिन आपके यहाँ पे गलत का पैमाना अलग है ना। नहीं वैसी बात, आपके यहाँ पे गलत और सही का पैमाना अलग है। हाँ हाँ, तो देखिए अल्लाह ताला ने जैसा चाहा इंसान को वैसा बनाया, 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया, होंठ दांत, 2 आंख दिया, सब कुछ दिया, उसकी मर्जी से बनाया है। हाँ, हवा को कब बनाया था? अगर थोड़े बाद में बात करेंगे। अच्छा, जब आपको पसंद नहीं है अल्लाह की ये चीजें, ये काम, तो आप ऐसा कीजिए कि अपने 4 हाथ बना लीजिए, अगर हो सकता है तो 4 आंख बना लीजिए, हो सकता है तो। कौन रोकेगा आपको? 4 पैर बना लीजिए, कौन रोकेगा? कोई रोकने वाला नहीं है, ये आपकी पसंद है, मगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आशीष भाई, हेलो, अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो अल्लाह ताला ने इंसान हर चीज को, उसके काम क्या करना है, किस तरह करना है, कहां पे करना है, सब सिखाया उन चीजों को। हाथ को क्या काम करना है, नाक को क्या काम करना है, आंखों को क्या काम करना है, ये सब अल्लाह ताला ने उन चीजों को सिखाया। दिमाग का तो जिक्र ही नहीं करते भाई आप लोग जी, दिमाग का भी जिक्र किया कीजिए कभी। मैं शुरुआत में आप बता रहे थे, मैं सोच रहा था कि भैया दिमाग का काम नाम कब लेंगे, देखता हूँ। दिमाग का भी लोगे भाई? हाँ, वो तो कहने पे अब ले रहे हैं ना महाराज। नहीं, वो भी आएगा भाई जी। आंखों को देखना सिखाया तो आप खुद नहीं सीखे जी। और किसी ने आपको सिखाया नहीं, ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फिक्स कर दिया है। जी। जुबान को बोलना है तो उसके अंदर फिक्स कर दिया है। आप कानों को, जो हम सुनते हैं ना, ये अल्लाह की दी हुई एक सलाहियत है। पैरों को चलना सिखाया अल्लाह ताला ने सिखाया, हाथों को काम करना अल्लाह ताला ने सिखाया। ये है ना इंसान के अंदर फितरत में अल्लाह ताला ने रख दिया है। अच्छा, ये सब चीजें वही काम करेंगे जो अल्लाह ताला करने का इन चीजों को हुक्म दिया है। दिमाग के बारे में भी कुछ बोलिए ना। दिमाग का भी बोलूंगा। अल्लाह ने बनाया। आशीष भाई, अगर आपको ये अल्लाह के काम पसंद नहीं है तो आंखों से देखना छोड़ दीजिए। मैं मानता हूँ कि मुझे अल्लाह का काम पसंद नहीं है, बोलना छोड़ दीजिए। मैं बताऊं, मुझे अल्लाह का काम पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये भी यकीन करता हूँ कि ये जो अल्लाह दावा कर रहा है ना कि उसने ये सब बनाया है, मैं मानता हूँ कि उसने ये काम किया ही नहीं है। तो जब उसने ये काम किया ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो वही तो मैं आ रहा हूँ ना, क्योंकि उसने अगर आप देखें तो मानव शरीर के विषय में अल्लाह को कुछ भी ज्ञान नहीं है। कुरान में जहां जहां पे भी बोलते हैं वहां पे उनको कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता। इवन कि एक जगह पे बोला गया है एक आयत में कि जो इंसान का वीर्य है वो बताते हैं कि भैया रीढ़ की हड्डी में से निकलता है, जबकि साइंस ये मानती है कि भैया जो हमारे अंडकोश हैं, जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, वहां से वीर्य बनता है, शुक्राणु बनते हैं, और अल्लाह कह रहे हैं कि भैया हड्डी से बनते हैं। अगर आप कहें तो मैं आयत दिखा सकता हूँ, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, उनके भेजिए। तो मानव शरीर के विषय में जितनी भी बातें बता रहे हैं अल्लाह कुरान में, वो सारी की सारी गड़बड़ बातें हैं, बस बकैती है। तो हम आप जो कह रहे हो कि अगर आपको अल्लाह का काम पसंद नहीं है तो आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, पहले तो ये साबित कीजिए कि अल्लाह जो दावा कर रहा है कि उसने ये काम किया है वो कहाँ से उसका काम है, क्योंकि वो तो कोई चीज बता नहीं रहा, केवल बकैती कर रहा है कि हाँ मैंने किया है। जी हाँ, जी हाँ।
تو वही बता रहा हूँ ना, जो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि हम कुरान पे ईमान रखते हैं ना, इसलिए हम, आप कुरान पे इतराज करें तो कुरान की बातें हैं आपको सुनाना है ना। दूसरी बातें मैं क्यों सुन, बाइबल की बातें मैं नहीं सुनाऊं क्योंकि मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। कुरान में वही आपके सामने बताऊंगा ना आशीष भाई। हाँ, तो कुरान की ही तो मैं बात बता रहा हूँ, मैं कुरान के दायरे से बाहर थोड़ी न जा रहा हूँ। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको नाक दिया है, नाक से आप सांस ले रहे हैं, क्योंकि आप नहीं ले रहे हैं बल्कि वो काम करने के लिए उस चीज को अल्लाह वैसा बनाया है, इसीलिए वो काम करते हैं। दिमाग को अल्लाह ताला ने दिया है, दिमाग से नलिकाएं होती हैं, इसके बारे में जिक्र है, अल्लाह ने कहीं जिक्र किया? क्या चीज? नाक में कितनी नलिकाएं होती हैं, इसके विषय में कभी अल्लाह ने कहीं पे जिक्र किया है? नहीं, ये क्या है कुरान मजीद। तो बस वही है कि गप है कि मैंने बना दिया, उसका प्रोसेस अगर नहीं पता चलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि भैया यही बनाने वाला है? जबकि बाकी किताबों में देखें, अगर आप हिंदू शास्त्रों में ही उठा के देखें ना, तो आपको बाकायदा मनुष्य के शरीर का वर्णन मिलता है कि कौन से पार्ट को क्या कार्य विधि है और किस तरीके से है। रुधिर के रक्त धमनियां किस तरीके से जाती हैं, किस तरीके से वो कार्य होता है, किस तरीके से प्राणवायु बाहर निकलती है, इस तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं। जी हाँ। कुरान मजीद में क्या है, वो चीजें तो इंसान खुद मालूम कर ले सकता है, मगर आखिरत की बातें, इंसान मरने के बाद क्या होगा, उसे कहाँ जाना है, ये समझाता है कुरान। मेन फाउंडेशन है इसका कि तुम्हारा एक खुदा है, तुम्हारा एक रब है, उस पे ईमान ले आओ, ये मेन फोकस है इसका। मेन फोकस जब उसका है तो उसी पे करना चाहिए था ना, जिसमें स्पेशलिटी है ही नहीं, जिसमें जानकारी है ही नहीं, फालतू में इसमें बोल दे रहे हैं। ऐसे उदाहरण दे के अल्लाह ताला ने इंसान को समझाता है कि आखिरत है, क्योंकि तुम नहीं देख पा रहे हो ना, इसलिए उदाहरण दे के समझाता है कुरान कि देखो आखिरत आने वाली है, हमने इंसान को पैदा किया है, वो कुछ भी नहीं था, फिर वो मर जाएगा तो फिर हम इंसान को दोबारा पैदा करेंगे, मतलब पुनर्जन्म होगा। हाँ, रिबर्थ मानता है इस्लाम। हाँ, पुनर्जन्म होगा, फिर वहाँ आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा कि दुनिया में तुमने क्या क्या काम किए हैं। अच्छा, जन्नत में ना, अच्छा वो वाला, ठीक। मुझे लगा इसी दुनिया में दोबारा जन्म होगा क्या? इसी दुनिया में, इस दुनिया को खत्म कर देगा। इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं होगा ना इंसान का? इस दुनिया को खत्म ही कर देगा ना। मतलब इस दुनिया में दोबारा इंसान का जन्म नहीं होगा ना, आप ये मानते हो? नहीं होगा। हाँ, अच्छा, ठीक, नहीं होगा। हाँ, वही मैंने सोचा कहाँ से भैया पुनर्जन्म मान रहे हो। हाँ जी। क्या है, ये इंसान के अंदर जो रूह है ना, आत्मा कहते हैं ना, आत्मा को मौत नहीं है। आत्मा इस इंसान के जिस्म से निकल के वो और एक जगह है जिसे बरसख कहते हैं, वहां पे चले जाती है। जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, क़यामत कहते हैं उसको, खत्म हो जाने के बाद फिर इसी इंसान को जिस्म देकर फिर वही रूह को डाला जाएगा, वही आत्मा को डाला जाएगा, डाल के फिर पूछा जाएगा कि हमने आपको दुनिया में भेजा तो कौन से काम किए हैं बताओ। हाँ जी, हाँ। तो देखिए जितने भी अल्लाह की आत्मा है तो बात कर लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए ना। हाँ, नहीं आप बिजी हैं तो बात कर लीजिए। माँ के है ना आपके, वालिदा आई हैं क्या, माँ आई हैं तो बात कर लीजिए। हो गया, बोलिए ना। जी। तो अल्लाह ताला ने जिन हमारे जो पार्ट्स हैं, जिस्म के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, जिसको जो काम करना वो काम उसको सिखा दिया है। ठीक है, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है कि फेफड़ों को सांस लेना हम नहीं सिखाएंगे, आंखों को देखना हम नहीं सिखाएंगे, पैरों को चलना हम नहीं, वो सिखा दिया है, अल्लाह ने सिखा दिया है। अच्छा, जुबान को बोलना सिखा दिया। मतलब तो, आप ये किस चीज को समझाने के लिए मुझे ये बातें बता रहे हैं? वही रहमान और रहीम के बात में हम आएंगे। जबकि आपके भी पार्ट्स ऐसे ही हैं ना, आपको किसी ने नहीं सिखाया, जो मुझे सिखाया भी नहीं, हम जुबान से बोल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ये वर्जिनलिटी आ गई हमको, अल्लाह ताला ने दे दिया, वदीयत कर दिया। तो आपको भी ऐसा ही है ना? क्या मैं नहीं मानता कि अल्लाह ने किया है कुछ भी। नहीं, ना माने कोई बात नहीं, बोल रहे ना, लायक रहमतुल्लिल सूरह बकरा के 256 आयत नंबर। हाँ, और दूसरी तरफ ये भी बोला गया है कि जो अल्लाह के दिन को नहीं मानता वो जहन्नुम की आग में जलेगा। लाइक रहा फिर दिन, तब दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट आ रहा है।
हाँ 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 एक तरफ तो कह रहे हैं भैया दीन में जबरदस्ती नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो दीन को नहीं मानेगा फिर उसको जहन्नुम में जलाएंगे हम। हाँ भाई, ये क्या है तो समझने ये की तो वही बात बात। हो गई कि भैया आप चाहे सेब खाओ चाहे संतरा खाओ, हम आपको कोई बंदिश नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ भैया तुमने केला खाया, संतरा खा लिया, सेब नहीं खाया, चलो अब तुमको हम काटेंगे। नहीं नहीं, लोग समझने के बाद इनकार करेंगे ना, जब वो इनकार करने वाले काफिर बोलते हैं। समझ के ही तो इनकार किया जाता है, और समझ के ही तो सवाल किया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। जी देखिए आशीष भाई, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा आप पे, नहीं क्योंकि भाई, मैं कल जबरदस्ती कोई किया कर भी नहीं सकता। आज के समय में ऐसा बन गया हूं ना कि बहुत सारी जबरदस्तियां झेल के आज के समय में ऐसा बन गया हूं कि अब कोई जबरदस्ती का जगह भी नहीं है मेरे। सूर्य बकरा के 256 आयत नंबर। हाँ, और दूसरी तरफ ये भी बोला गया है कि जो अल्लाह के दीन को नहीं मानता वो जहन्नुम की आग में जलेगा। लाइक रहा पे दीन, तब दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक तरफ तो कह रहे हैं भैया दीन में जबरदस्ती नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो दीन को नहीं मानेगा फिर उसको जहन्नुम में जलाएंगे हम। हाँ भाई, ये क्या है तो समझने ये की तो वही बात हो गई कि भैया आप चाहे सेब खाओ चाहे संतरा खाओ, हम आपको कोई बंदिश नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ भैया तुमने केला खाया, संतरा खा लिया, सेब नहीं खाया, चलो अब तुमको हम काटेंगे। नहीं नहीं, लोग समझने के बाद इनकार करेंगे ना, जब वो इनकार करने वाले काफिर बोलते हैं। समझ के ही तो इनकार किया जाता है, और समझ के ही तो सवाल किया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। जी देखिए आशीष भाई, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा आप पे। नहीं भाई, जबरदस्ती कोई किया कर भी नहीं सकता। आज के समय में ऐसा बन गया हूं ना कि बहुत सारी जबरदस्तियां झेल के आज के समय में ऐसा बन गया हूं कि अब कोई जबरदस्ती का जगह भी नहीं है। तो अल्लाह ताला कहता है, बहुत सारे जो जितने पार्ट्स हैं सब जो उसके फरमान के मुताबिक चल रहे हैं, मेरे भी चल रहे हैं, आपके भी चल रहे हैं, तमाम के चल रहे हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से क्या है, आप जो है ना, जैसा अल्लाह बनाया है आपकी चीजों को वैसे वो चल रहे हैं कंटिन्यू, तो आप जो है आधे मुस्लिम हैं, आधे मुसलमान हैं आप। क्योंकि जैसा अल्लाह चाहा इंसान को वैसा बनाया, और उन चीजों को जैसा चलने का अल्लाह हुक्म दिया है वैसे ही वो चल रहे हैं। आप माने या ना माने अल्लाह को, तो वैसे ही चल रहे हैं वो चीज। आप जो है ना जुबान से सुनना नहीं सुन सकते, कानों से बोल नहीं सकते आप, क्योंकि आपका जिस्म आप नहीं बोल सकते। आप हाथों से नहीं चलेंगे, आपका जिस्म नहीं चलेंगे। आप पैरों से वो काम नहीं करें जो हाथ से काम करते हैं। अल्लाह ताला ने पैर बनाए चलने के लिए, आप है ना दूसरा काम उससे नहीं लेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि आप आधे मुसलमान हैं। और आगे बढ़े, आप बोलते रहिए, मैं बीच में नहीं टोक रहा इसीलिए आपको। जी 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 जी, ऐसा नहीं है। संविधान डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो किसी चीज का दावा नहीं करता। जी हाँ जी हाँ, इसीलिए वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो दावा नहीं करता, और वो इस तरीके से कोई वो नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं चला है वो संविधान। जी हाँ जी हाँ, बहुत सारे मिलके बनाए हैं। बहरहाल संविधान तो है ही एक हमारा, हर एक तबके का व्यक्ति, हर एक वर्ग का व्यक्ति मिलके उसको बनाया है। जबकि आप जिस नियम कानून की बात कर रहे हैं वो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा आया है। जी हाँ जी हाँ। तो बहुत सारे लोगों मिलकर संविधान बना, मगर संविधान एक ही है, वो बहुत सारे संविधान नहीं है, एक ही है ना। तो अल्लाह ताला जो है शिर्क से पाक है, ये बार बार कहता है, जो भी बनाता है उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, वो अकेला ही बनाता है। चाहे मनुष्य को बनाने में, चाहे सारी दुनिया को बनाने में, जो भी इंसान सबको अकेला ही बना। हुक्म किया वो हो जा तो हो जाता है, बस जो अच्छा हो चाह वैसा बन गया। दयावान पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाइए भाई, बहुत टाइम हो गया। हाँ हाँ, इसको समझा ले गए तो फिर वहां समझ में आएगा ना, शॉर्ट में बोलेगा तो नहीं समझ में आएगा। इसी तरह जब दुनिया ताला बनाया है अल्लाह ताला ने, तो इंसान को जीने का तरीका भी वही सिखाएगा। ऐसा नहीं कि हम देश बना लिए, संविधान हम बनाए तो अमेरिका के हमको चलाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। हमारे संविधान की किताब पे हम चलेंगे, अमेरिका की थोड़ी चलेंगे जी। अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं नोकिया, तो नोकिया ही का आपको कैटलॉग मिलेगा, उसी को देख के आप चलेंगे ना। और दूसरा कैटलॉग देगा वो, जैसा कि सैमसंग है तो वो देगा, तो आप नहीं लेंगे उसको।
लेकिन उसमें कुछ बेसिक नियम तो ऐसे रहेंगे जो सब मोबाइल में एक जैसे रहेंगे। जब आप खरीदेंगे तो कंपनी का जो बेसिक नियम वही होगा जो सब मोबाइल पे लागू होता है। भैया उसको भी चार्ज करना पड़ेगा, उसको भी रिचार्ज करना पड़ेगा, उसमें भी सिम कार्ड लगाना पड़ेगा। हाँ, उसमें भी नेटवर्क की गड़बड़ी होती होगी। जी हाँ, मगर आप तो बेसिक रूल तो उसमें भी रहेंगे, उसमें भी बटन होते हैं, उसमें भी बटन, उसमें भी बैटरी होगी। बेसिक रूल तो मूलभूत सिद्धांत तो एक ही होंगे, मगर कंपनी वाला तो उसी कंपनी का देगा ना। हाँ ठीक है, दूसरा तो नहीं देगा। ठीक है, वो अपने कंपनी का लोगो लगा चिपका के देगा, वही चीज कुछ भी हो देगा, कंपनी का ही देगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब सारी कायनात को बनाया, इंसान को बनाया, तो इंसान को भी जिंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए उसने भी कुरान भेजा है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, थोड़ा सा इस पे बोलना चाहता हूँ कि भैया जैसे कि वो कंपनी वाले हैं ना, लगभग कैटेलॉग एक जैसा ही रहता है, बस वो थोड़ा बहुत चीजों को रद्दो बदल करके और अपना वाला लोगो लगा के अपना चिपका देते हैं कि भैया ये हमारा है। जिस तरीके से यहूदी लोग तौरा को करते हैं, क्रिश्चियन लोग बाइबल को करते हैं, और मुस्लिम भाई इसको कुरान को करते हैं। लेकिन देखा जाए तो उनमें लगभग काफी सारी चीजें एक जैसी हैं, थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर दिया गया है। हाँ, क्योंकि ये तीनों किताबें हैं ना, भैया अपना लोगो चेंज कर दिया गया है और बता रहे हैं कि भैया हमारा इंडिविजुअल, हमारा ही सबसे बढ़िया, तीनों कह रहे हैं। नहीं, ये कुरान बाइबल, उससे पहले जबूर भी था। जितने भी पैगंबरों पे किताबें आई है ना, हो सकता है हमारे देश में श्री राम जी भी पैगंबर होंगे, उनके जमाने में कोई किताब। श्री राम जी को पैगंबर कह के अपमानित ना कीजिए, वो पैगंबर नहीं थे, वो पैगंबर अलग चीज होता है। अच्छा, पैगंबर पैगाम लाने वाला होता है। मतलब कि जिनके पास पैगाम नहीं था उनके लिए पैगाम लेके आया, और उसको पैगाम लाने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता पड़ी। तो उस तरीके से चलिए उदाहरण दिया हूँ बस, ना फिर कहीं जा रहे थे जी। तो जब अल्लाह ताला ने भी इंसान को पैदा किया तो इंसान को भी दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए एक तरीका बताना तो कुरान की शक्ल में आ गया। और किसी ने, अब देखिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट किसी ने बनाया हो उसको चलाने कोई कंपनी दूसरा कंपनी से कहता, ऐसा नहीं है। जो कंपनी प्रोडक्ट बेचता है वही सिखाएगा कि किस तरह से इस्तेमाल करना, वो बोल देना कैटलॉग आएगी। तो अल्लाह ताला ने भी इंसान को पैदा करने के बाद ऐसे भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया कि तुम जैसे चाहे जिंदगी गुजारो। जो उसकी निगाह में पाप है वही पाप है। तो कैटेलॉग उसने कौन सा दिया अल्लाह ने? जी हाँ, अल्लाह मतलब आप कह रहे हो कि मोबाइल बनाने के बाद कोई मोबाइल कंपनी कैटेलॉग देती है। हाँ, तो अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो कौन सा कैटेलॉग दिया था? वही कुरान है। हजरत आदम को कौन सा कैटेलॉग मिला था? उस वक्त में इतनी आबादी भी नहीं थी, इतने ज्यादा आबादी, एक कस्टमर हो चाहे 10 कस्टमर हो, एक कस्टमर को भी एक मोबाइल देंगे तो भैया उसमें भी एक कैटलॉग तो रहेगा ही ना महाराज भाई जी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?